हालेलुया। सारे मेरे वालों जय एमसी दी। प्रभु तुहानू सारे बरकत देवे, प्रभु के नाम की वडियाई होवे। आओ असीं प्रभु के पाक कलाम नूं पढ़ांगे। रसूलां दी किताब उहदा 7 अध्याय और उहदियां पहलियां 8 आयतां प्रभु के कलाम विचों पढ़ांगे। अगर तुसीं सारिआं ने खोल लिया तुसीं आमीन कह सकदे हो। रसूलां दी किताब उहदा 7 अध्याय और उहदियां पहलियां 8 आयतां असीं प्रभु के कलाम विचों पढ़ांगे। तद सरदार याजक ने पूछया, ये गल्लां इवें ही हन? तां ओह बोलिया, हे भाईओ अते हे पितरो सुणो। साडे पिता अब्राहम नूं हरान विच वसन दी अग्गों जद ओह मैसोपोटामिया विच सी, तेज रूप परमेश्वर विखाई दिता अते ओहनूं आख्या, तू अपने देश अते अपने सारे साकां विचों निकल के हरान विच जिहड़ा मैं तैनूं विखावांगा चलिया आ। तद ओह कलदिया दे देश तो निकल के हरान विच जा वसिया अते ओहदे प्यो दे मरण पिछों परमेश्वर ने ओहनूं उथों लिया के ऐस देश विच वसाया जिथे हुण तुसीं रहिंदे हो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਸਗੋਂ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸੂ ਦਿਆਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਬਾਲਕ ਅਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ 400 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ। फिर परमेश्वर ने आख्या, मैं उस कौम उत्ते जे दे ओ गुलाम होणगे डन लावांगा और ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਨਤ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਕੂਬ ਦੇ 12 ਗੋਤਰਾਂ ਯਕੂਬ ਦੇ ਘਰ 12 ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਚੁਣੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਤੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਖੰਡ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇਣੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਗੀਤ ਭਜਨ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਚੰਗੀ ਬੈਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਬੂਲ ਹੋਣ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹਨ, ਸਭ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੀ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਲੀ ਸੁਬਾਹ ਤੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम की वडियाई होवे। आमीन। कि असीं सारे खुश हैं पाप विच आके। हालेलुया। प्रभु के नाम की वडियाई होवे, उहदे नाम की तारीफ होवे। और साडे लई वाकई भागां वाली गल यही हुंदी है। आमीन। प्रकाशन पाए हुए लोकां दे लई खुशी की गल ये हुई है कि जदों प्रभु के घर विच आउण। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ होवे, प्रभु के नाम की महिमा मिले। और मैं तुहानूं सारिआं नूं देख के खुश हाँ और प्रभु का धन्नवाद होवे। और पिछलियां सब सभावां दे लई प्रभु का धन्नवाद होवे। पिछले दिनों में मौसम भी बहुत खराब रहा, पर फिर भी प्रभु ने तुहानूं सारिआं नूं संभाल के रखिया। इहदे लई प्रभु का धन्नवाद, प्रभु के नाम की वडियाई होवे। आमीन। हालेलुया। सो अज असीं एक नवा विषय शुरू करांगे। What is the Holy Ghost? पवित्र आत्मा की है।
ਆਮੇਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਪਾਓਗੇ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਈਜ਼ਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਈਜ਼ਬਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਸੀਹ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਮੇਨ। ਜੋ ਆਹਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਸੀਹ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਹੋਲੀ ਗੋਸਟ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਡਿੱਕੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਆਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਇਹਦੀ ਨਬੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 3-4 ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਔਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਪਾਲਕਪਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਆਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਪਾਲਕਪਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲਿਪਾਲਕਪਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਿਪਾਲਕਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਪਾਲਕਪਨ ਕੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਨਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਕਨਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਆਮੇਨ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਟੀਚਿੰਗ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਅਸੀਂ ਗੁਨਹਗਾਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਮੇਨ। ਸਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਝੰਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਕ ਸਾਡੀ ਉਸ ਪਛਤਾਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਪਛਤਾਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਰਚ ਲਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਉਸ ਝੋਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਔਰ ਜੋ ਕਲਾਮ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ।
हालेलुया। और उस चोट में रह के असी परमेश्वर के प्रति अपने प्यार का प्रगटावा करते हैं, अपने अपने प्यार का प्रगटावा करते हैं, अपनी कुर्बानियां का प्रगटावा करते हैं और अपने सच्चे मसीह होने का दावा पेश करते हैं। हालेलुया। फिर उत्थे लगातार सानू सिक्ख्या दी जाती है। प्रीचिंग के नाल तो काम हो गया, असीं अंदर आ गए। प्रीचिंग के नाल, प्रचार के नाल साडा दिल कन्विंस, साडा दिल झंजोड़िया गया, असीं अंदर आ गए। हुण जदों असीं अंदर आ गए तो हर ऐतवार, हर बुधवार शाम सानू प्रचार सुनाया जाता। काहदे लई? सानू टीचिंग दी जाती, सिक्ख्या दी जाती। आमीन, हालेलुया। और वो सिक्ख्या जिहड़ी सानू अडॉप्शन तक लै जाती है। हालेलुया। और फिर वो अडॉप्शन, वो निपालकपन जो पुत्र आत्मा का बपतिस्मा है, जदों असीं लगातार चर्च आउंदे आ, चर्च के प्रति वफादार रहिंदे आ, जो वचन सिखाया जाता असीं उहदे विच ढालदे जांदे आ ईमानदार, और जिद्दां बाइबल कहंदी आ मसीह दी सिद्ध डील डौल वाल वधदे जांदे आ, तां फिर वो पुत्र आत्मा, आमीन, फिर वो पुत्र आत्मा इन्हां सारियां गल्लां नूं नोट डाउन करदा है। और फिर जदों इन्हां सारियां गल्लां नूं नोट डाउन करदा तो फिर वो सानू मोहर बंद कर दिंदा है। पुत्र आत्मा नाल वो मोहर बंद कर दिंदा सा। और नबी कहंदा मोहर की है? सिक्योरिटी है, सुरक्षा है। आमीन। मोहर का मतलब सिक्योरिटी है, चिन्ह है। वो साडे उत्ते चिन्ह ला दिंदा है, वो सानू सिक्योर कर दिंदा है कित्थों तक दे लई जिथे असीं पहुंचना है। हालेलुया। फिर कोई भी शैतान, फिर कोई भी दुष्ट आत्मा, फिर कोई भी मुसीबत, मुश्किल उस मोर नूं तोड़ नहीं सकती। कहता मतलब जिन्हों पुत्र आत्मा ने एक बारी मोर बंद कर दिता, फिर वो बंदा सदा भी बचाया गया है। हालेलुया। प्रभु के नाम की वडियाई होवे, उहदे नाम की महिमा मिले। इसी अडॉप्शन का संदेश। आमीन। और ये पुत्र आत्मा की है, ये भी इसे तरह का एक संदेश है जो तुहानू सीखने को मिलेगा और बहुत सारी गल्लां तुहाडी जिंदगी में काम आउणगियां। आमीन, हालेलुया। नबी अपने संदेश शुरू में कहंदा, टुनाइट, आज रात, वी हैव स्टार्टेड दिस रिवाइवल फॉर द हीलिंग ऑफ द सोल, द स्पिरिट ऑफ द मैन। नबी कहंदा आज रात असीं एक बेदारी दा प्रचार शुरू कर लगे। नबी कहता अज जेड़ा प्रचार असी शुरू कर लगे हैं, ये साडे प्राणा दी चंगियाई दा प्रचार है। ये आदमी दे आत्मा दी चंगियाई दा प्रचार है। हालेलुया। कई प्रचार दे शरीर चंगियाई दे उत्ते कीते जांदे, लोकां नूं प्रेरणा नाल भरिया जांदा, लोक शरीर चंगियाई पा जांदे। पर भाई ब्रानम सारे युग दे नबी कहंदे ये जो संदेश व्हाट इज द हॉली गोस्ट, पवित्र आत्मा की है, ये प्राणा दी चंगियाई दा प्रचार होएगा। आमीन, हालेलुया। किन्ने मेरे नाल है? प्राण है सारे अंदर। आप सब जानते हैं एक शरीर है, एक आत्मा है और ओदे अंदर एक प्राण है। आमीन। और भाई इब्राहिम कहते ये जो संदेश है व्हाट इज द हॉली गोस्ट, पवित्र आत्मा की है, ये साडे प्राणा दे लई प्रचार होएगा। We are greatly pressed to speak on eternal things for the soul. नबी कहता असी यत्न करांगे प्राण दे लई कुछ सदीपक गल्लां बोलियां जाण। आमीन। प्राण दे लई सदीपक गल्लां बोलियां जाण, प्राण दी शिफा दे लई, प्राण दी चंगियाई दे लई, शरीर दी चंगियाई लई नहीं, प्राण की चंगियाई लई कुछ गल्लां बोलियां जाण। भाई इब्राहिम कहंदे असी इहदा यतन करांगे। वी नो, असी जानते हैं, व्हेन बॉडी इज हील्ड, जदों शरीर चंगियाई चंगा हुंदा है, मेक अस ऑल हैप्पी, तां शरीर की चंगियाई सानू सब नूं खुश करदी है। बिकॉज वी नो दैट इट्स डेफिनेटली शो दैट आवर गॉड हील द सिक। और बीमारी तो चंगियाई
सानू इसलिए खुश करती है क्योंकि ये तो असीं ये जानते हैं कि साडा प्रभु सानू प्यार करता है। हालेलुया। और वो सानू चंगिया करता है। बट दैट सिक पर्सन, पर वो बीमार व्यक्ति, इफ दे लिव लॉन्ग अनफ, वो लंबा हो जीवे, विल परहैप बी सिक अगेन, वो दोबारा बीमार हो सकता है। Maybe will be the same disease that they were healed of, हो सकता वही बीमारी जिदे तो चंगा हो गया। Amen। तुम बता रहे हो? Maybe the same diseases, वही बीमारी they were healed of, जिदे तो चंगा हो गया। Later they will die with it, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਜਾਵੇ। ਇਟ ਰੀਕਰ ਅਗੇਨਸ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਵੈਨ ਦੈਟ ਸੋਲ ਇਜ਼ ਹੀਲਡ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ ਦੈਨ ਯੂ ਇੰਟਰਨਲ ਲਾਈਫ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, एक आदमी जो बीमारी तो चंगा होता फिर अगे जाके बीमार हो जाता, वो फिर बुढ़ा हो जाता और बुढ़ा होके मर जाता। वो सेवक जिन्होंने बड़िया बड़िया चंगियाई सभावां कीतियां, वो खुद बीमार होए, खुद धरती ते खत्म हो गए। भाई ब्राह्मण कहते जी शरीर की चंगियाई है, शरीर की चंगियाई सानू खुश करती है, क्योंकि सानू अनुभव कराउंदी है कि परमेश्वर चंगिया करता है। पर जी प्राण की चंगियाई है, वो सदीपक जीवन देती है। हालेलुया। क्योंकि शरीर की चंगियाई, शरीर चंगा हो गया, नबी कहता मान लो शरीर नमूनिया तो चंगा हो गया, और भाई ब्राह्मण कहते फिर थोड़े समय बाद फिर नमूनिया हो सकता है, और मनुख नमूनिया ना फिर मार सकता है। पर जदों, क्योंकि शरीर है, ਇਹਦਾ ਵਜੂਦ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਆਖਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲਿਆ, ਲਾਜ਼ਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਨਾਇਨ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਇਨ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ। क्योंकि शरीर की चंगियाई सदीपक नहीं है, शरीर की चंगियाई सदा नहीं है, पर प्राण की चंगियाई सदा की चंगियाई है। हालेलुया। प्रभु के नाम की वडियाई होवे, ਉਹਦੇ नाम ਨੂੰ महिमा मिले। नबी कहता प्राण की चंगियाई, सोल की चंगियाई सदीपक चंगियाई है। और ये जो संदेश ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੋਲ ਦੀ, ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੋਲੀ ਗੋਸਟ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ। What was it given for, एक कादली दिता जाता है। How do I get the Holy Ghost, मैं कितना जानागा कि मैं पवित्र आत्मा पा लिया है। Amen। कहता इन्हां ते असीं गल करांगे, पवित्र आत्मा की है, पवित्र आत्मा कादल दिता जाता है, और मैं कितना जानागा कि पवित्र आत्मा, Amen, हालेलुया, कि पवित्र आत्मा जो है वो मैं पा लिया है। ਅਸੀਂ इस विषय ते गल करांगे। प्रभु के नाम की वडियाई होवे, ਉਹਦੇ नाम ਨੂੰ महिमा मिले। आमीन, हालेलुया। कि तुसीं खुश हो इस विषय के लिए? क्योंकि भैन भरावो पवित्र आत्मा ही सब कुछ है। You cannot come to receive the Holy Ghost, Holy Spirit, unless you know what it is। नबी कहता मैं इदा कहांगा, तुसी उन्नी देर तक पवित्र आत्मा नहीं पा सकते जिन्नी देर तक तुसी जानते नहीं हो कि पवित्र आत्मा की है।
You cannot receive it if you know what it is unless you believe it's given to you, it's for you. ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਊ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਕਮ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਐਂਡ ਰਿਸੀਵ ਦ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, unless you know what it is, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ and you cannot receive it, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ if you know what it is, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। unless you believe it's given to you and it's for you, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। then you cannot know whether you got it or not unless you know what result it brings, ਔਰ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਨੋਟ ਵਟ ਇਟ ਇਜ਼, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ, ਹੂ ਇਟ ਇਜ਼, ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਵਟ ਐਕਸ਼ਨ ਇਟ ਬ੍ਰਿੰਗ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, then you will know, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ what you have got, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, then you get it, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਔਰ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਔਰ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਆਮੀਨ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਹਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਿਖਤਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਦ ਸਰਦਾਰ ਯਾਜਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹਨ? ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਹੇ ਭਾਈਓ, ਹੇ ਪਿਤਰੋ, ਸੁਣੋ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਹਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਦ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇਜ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਇਸਤੀਫਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਇਸਤੀਫਾਨ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਸਤੀਫਾਨ ਉਹਨਾਂ 7 ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਰਸੂਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ।
और वो पहली कलीसिया दी सरगर्म योधे सन। हालेलुया। वो पहली कलीसिया दे सरगर्म योधे सन और वो प्रचार कर लगा, यहूदियों ने गवाही देन लगा। आमीन। और जो गवाही दे रहा सीगा तो वो कहता कि उन्हें प्रचार, उन्हें गवाही देनी शुरू की, अब्राहम की गल उन्हें शुरू की। और जो ने अब्राहम की गल शुरू की, प्रभु के नाम की वडियाई होवे, तो उन्हें कहा साडे पिता अब्राहम नूं हरान विच वसन दे अगों जद वो मैसोपोटामिया में सी, तेज रूप परमेश्वर विखाई दिता अते उन्होंने आख्या तू अपने देश अपने साका विचों निकल कि उस देश में जिहड़ा मैं तेनू विखालदा हां चलिया आ। तद वो कलदिया दे देश तो निकल के हरान विच जा वसिया अते ओहदे प्यो दे मन पिछों परमेश्वर ने ओहनूं उथों लिया के इस देश विच वसाया जिथे हुण तुसीं रहिंदे हो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਸਗੋਂ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਬਾਲਕ ਅਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। परमेश्वर ने यह आख्या तेरी अंश प्रदेश में जा रहेगी और वो उसनूं गुलाम बना के रखणगे और 400 बरस तक दुख देणगे। फिर परमेश्वर ने आख्या मैं उस कौम उत्ते जे दे ओ गुलाम होणगे डल लावांगा अते ओहदे पिछों निकल आउणगे अते इसे थां मेरी उपासना करनगे अते उसने ओहदे नाल सुन्नत दा नेम कीता। सो इस तरह ओहदे इसहाक जम्मिया अते ओहने 8वें दिन ओहदी सुन्नत कीती अते इसहाक दे याकूब और याकूब दे घर 12 गोत्रां दे सरदार जम्मे। आमीन। हालेलुया। 12 गोत्रां दे सरदार जम्मे। नबी और नबी कहंदा आ, बड़ी ध्यान नाल सुनियो, जदों परमेश्वर ने अब्राहम नूं मैसोपोटामिया चों बुलाया, जदों उहनूं उस देश विच ले आया जिहड़ा देश कनान दा देश, जिहड़ा देश उहनूं देण दा वायदा कीता सी। आमीन। हालेलुया। पहला वो मैसोपोटामिया च रहिंदा सीगा अपने बाप दे नाल, अपने भरावां दे नाल, अपने कुणबे दे नाल, पर चोण दे नाल परमेश्वर ने उहनूं उस देश चों बाहर बुलाया। हालेलुया। और जदों बाहर बुलाया तो उहनूं उस देश विच ले आया जिहड़ा देश कनान दा देश सी, जिथे आके वो बस गए सन। आमीन। और फिर परमेश्वर ने उन्हें यह वादा दिता कि मैं ये देश जिथे तू रह रहा है तेरे बगलों तेरी अंश नूं देवांगा। 400 वरे वो गुलामी करनगे और 400 वरे की गुलामी तो बाद मैं उन्होंने कढ़ के मिस्र देश विचों ले आवांगा और फिर इसे धरती उत्ते आके मेरी उपासना करनगे। आमीन। फिर इसे धरती ते आके वो मेरी उपासना करनगे। और देखो ये सारी गल्लां परमेश्वर उदों कर रहा सीगा जदों उहदे कोई पुत्र नहीं सी, जदों वादे दा पूरे होण दा कोई चिन्ह नहीं सी। आमीन। परमेश्वर सारी गल्लां उदों कर रहा है, पर अब्राहम इन्हां सारियां गल्लां ते विश्वास कर रहा है। फिर परमेश्वर ने कीता, उहनूं कहा जिन्ने नार तेरे विच होण, जिन्ने नार तेरे विच होण उन्हां दी सुन्नत कीती जावे, उन्हां दी उस गुप्त अंग दी वाधू खलड़ी कर दित्ती जावे, उन्हां दी सुन्नत कीती जावे। ये तेरे विच और मेरे विच एक नेम है, ये तेरे विच और मेरे विच एक चिन्ह है। आमीन। हालेलुया। और उन्हें क्या तेरे विच हर एक नर दी, और बाइबल जब पढ़िया जदों इसहाक जम्मिया तो इसहाक 8वें दिन का होया तो अब्राहम ने दी सुन्नत की। फिर इसहाक तो याकूब जम्मिया और फिर याकूब तो 12 गोत्रां दे सरदार जम्मे। नबी हुण कहना शुरू करदा है, सुनिए ध्यान नाल। आई वांट टू टॉक ऑन इट, मैं इहदे गल करना चाहता हूं। Holy Spirit being a sign, it is a sign. पवित्र आत्मा चिन्ह है। आमीन। ये चिन्ह है। पवित्र आत्मा एक चिन्ह के रूप में दिता जाता है। We realize, असी जानते हैं, all promises is given to us by Abraham. अब्राहम दी राही सारे वादे सानू दिते गए।
Abraham was the father of the promise. Abraham ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ, because God gave the promise to Abraham, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, and to his seed after him, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ। promise was made, ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, to Abraham and his seed, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। Amen, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਮੀਨ। ਬੜੇ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੀ ਕਾਲਡ ਅਬਰਾਹਮ, ਉਹਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਮੂਵਡ ਆਊਟ ਆਫ ਹਿਸ ਕੰਟਰੀ, ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। went into a strange land, ਇੱਕ ਓਪਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਣ ਦੇ ਲਈ, to dwell among strange people, ਓਪਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਲਈ। that was a type of when God called him man to stop his meanness, repent of his sin। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਓਪਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਓਪਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਓਪਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਓਪਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਧਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੁਨਤ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨਤ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਓਪਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਠਹਿਰਾਈ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਓਪਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਓਪਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ that was type of, ਇਹਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ when God calls a man, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ to stop his meanness, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟਪੁਣੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇ, repent of sin, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰੇ। he turned then from the crowd that he was in, ਔਰ ਉਸ ਭੀੜ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ, to live in a new crowd, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਵੇ, among new type of people, ਔਰ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਔਰ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਓਪਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਓਪਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਓਪਰੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਓਪਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬੰਨਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਓਪਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਓਪਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਵੇਚਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਵੇਚਿਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਗੰਦਮੰਦ ਤੋਂ, ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰੀਰਕਤਾ ਤੋਂ, ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਤੋਂ, ਕਹੋ ਭੈਣਾ ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਭਾਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਓਪਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਮੇਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੈਟਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੰਦਮਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਾਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਨਵੀਂ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਭੀੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹਰਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਬਰਾਹਮ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁन्नत ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਆ, ਸੁन्नत ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਆ। ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਨੇਮ ਜਿਹੜੀ ਸੁन्नत ਸੀ ਉਹੀ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੁन्नत ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਰ ਦੀ ਸੁन्नत ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਲੱਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਪਰ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਠਹਿਰਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਠਹਿਰਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਖਲੜੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵਾਧੂਪਣ ਜੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਈਏ ਔਰ ਉਸ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਰਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ 28 ਨੰਬਰ ਪੈਰਾ। Then after God found Abraham to be faithful to the promise that God gave him. ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, that he would have a child, ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ,
through this child all the earth will be blessed, ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। Then God confirmed his faith, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ by giving him a sign, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ। That sign was circumcision, और वो चिन्ह जो सी वो सुन्नत दा चिन्ह सी। Amen. Circumcision is the type of the Holy Spirit, और पुराने नेम में जो सुन्नत सी वो नवे नेम विच पुत्र आत्मा दा परछावां सी। Amen. हालेलुया। क्योंकि जो कुछ पुराने नेम में सी आप सब चंगी तरह जानते हैं वो परछावां ही सी। पुराने नेम में सुन्नत दा चिन्ह सी उन्हां कोल। जदों अब्राहम वफादार निकलिया उस वादे दे प्रति, जदों अब्राहम परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार निकलिया और हर हालातों में उस वचन से खड़ा रहा, तो फिर जदों परमेश्वर ने देखिया, परमेश्वर ने जो देखिया कि वफादार है, परमेश्वर देखा भरोसे योग है, परमेश्वर देखा वाकई बंदा भरोसे योग है, ये मेरे नाल चल सकता है, मैं जो कहा इन्हें उत्ते विश्वास किया है और मैं जिधर नूं कहा उधर नूं चलिया है। तो फिर आखिर जाके परमेश्वर ने उन्हें एक चिन्ह दिता, ओदे विश्वास नूं प्रमाण करन दे लई, ओदे विश्वास नूं प्रमाण करन दे लई सबूत दे तौर ते उन्हें एक चिन्ह दिता गया। वो चिन्ह सुन्नत दा चिन्ह सी। आमीन, हालेलुया। वो चिन्ह सुन्नत दा चिन्ह सी और पुराने नेम में सुन्नत दा चिन्ह, नवे नेम में पुत्र आत्मा दा बपतिस्मा है। जदों परमेश्वर साडी, जदों परमेश्वर सानू भी रब लैंदा आ, वो एक विश्वासी भैन नूं, एक विश्वासी भाई नूं, एक विश्वासी सेवक नूं जदों रब लैंदा है कि ये सच्चा है, वफादार है और मेरे तो डरन वाला है। आमीन। और जिथे मेरे वचन दे उत्ते खड़न वाला है, मेरे वचन की आज्ञाकारी करने वाला है, हालेलुया। तो फिर परमेश्वर उन्होंने भी एक चिन्ह देता है और वो चिन्ह है पवित्र आत्मा। हालेलुया, प्रभु के नाम की वडियाई। ओदी भी सुन्नत करता है और ओदी सुन्नत केड़ी है? नबी कहता जो असी 51 आयत पढ़ते हैं, 7 अध्याय की 51 आयत, तो फिर अगे जाके वो गल करदा उन्हां नाल। रसूलां दी किताब 7:51, हे हजी दे मन दे कान दे बेसुनती लोगो, तुसी सदा पुत्र आत्मा दा सामना करदे हो, जिवें तुहाडे प्यो दादियां ने कीता तिहा तुसी भी करदे हो। हुण वो गल कर रहा दिल दे सुन्नत दी, मन ते कान दे बेसुनती लोग, मन की सुन्नत की गल करदा। शुरू कित्थों करदा? हो शुरू करदा हो शरीर की सुन्नत तो। आमीन। इस्तिफान जो अपना प्रचार शुरू करदा वो 8 अध्याय विच गल करदा शरीर की सुन्नत तो, और जदों वो 52 आयत विच पहुंचदा अपने प्रचार के एंड उत्ते, और 53 आयत में देखो इस्तीफान उत्ते वो पत्थर मारन लग जाते हैं। जदों अपने प्रचार का एंड करदा वो शरीर की सुन्नत तो अगे वध के वो मन की सुन्नत ते चल जाता। किथे चल जाता? वो मन की सुन्नत ते। कहंदा तुसी मन दे बेसुनती लोग हो और तुसी सदा पुत्र आत्मा का विरोध किया है। नबी कहंदा पुरानी नेम की सुन्नत शरीर की सुन्नत सी, पुरानी नेम की सुन्नत सी वो शरीर की सुन्नत सी, पर नवे नेम की सुन्नत मन की सुन्नत है। हालेलुया। किहदी सुन्नत है? मन की सुन्नत। मन में बड़ियां वाधू चीज़ां हैं।
मन में बड़िया वाधू चीज़ां है, उन्होंने कढ़ना है, उन्होंने सुटना है, उन्होंने कटना है। आमीन, हालेलुया। मन बहुत कुछ करता है और लोग कहते मन साफ होना चाहिए बाहरों भावें जिदा मर्जी हुई है। नहीं, उन्हें शरीर उत्ते साडे लई कला मन ही नहीं दिता, उन्हें सारा शरीर दिता। हालेलुया। उन्हें हाथ भी दिते सन, उन्हें पैर भी दिते सन, उन्हें मुंह भी दिता सी। हालेलुया। उन्हें सिर भी दिता सी, उन्हें पूरा बदन ही दिता सी। कई कहते प्रभु को कला मन ही दे दो। नहीं, ਜਦੋਂ ने शुरुआत की उन्हें शरीर की सुन्नत तो गल की, पर जदों उन्हें अपना प्रचार खत्म किया उन्हें मन की सुन्नत की गल की। आमीन, हालेलुया। प्रभु के नाम की वडियाई हो, प्रभु के नाम की महिमा मिले। नबी कहता इट वाज सेपरेट देम फ्रॉम ऑल अदर पीपल्स दिस साइन ऑफ सर्कमसीजन। भाई इब्राहिम कहता यह सुन्नत का चिन्ह जो अब्राहम को दिता गया और उस तो बाद उसकी संतान को दिता गया, यह सुन्नत का चिन्ह उन्होंने दूजे लोगों तो अलग करता सी। ये दूजे लोगों तो अलग लोग सन, क्योंकि दूजे लोगों को अजिहा कोई चिन्ह नहीं सी, पर अब्राहम दे कोल और ओदे वंश दे कोल एक चिन्ह सी, और यह चिन्ह ही ओनू उस समय दियां कौमां तो, आमीन, जो धरती उत्ते सन दूजिया कौमां तो एक चिन्ह ही ओनू अलग करदा सी। यह सुन्नत ओनू और ओदे लोकां नू अलग करदी सी। हालेलुया। That's what God uses today. आज यही परमेश्वर साडे नाल करदा है। It is a sign of circumcision of the heart, एक दिल दी सुन्नत दा चिन्ह। Holy Spirit जो पवित्र आत्मा है, that make God's church separated church from other creeds, faith and denomination। नबी कहता एक दिल दी सुन्नत, एक पवित्र आत्मा का चिन्ह जो परमेश्वर अपनी कलीसिया को देता है, जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है, यह चिन्ह ओनू संसार के धर्मां तो, संसार के रीतियां तो, संसार के रिवाजा तो, संसार के जथेबंदियां के लोगों तो अलग करता है। हालेलुया। उन्होंने अलग कर देता है, जिवें सुन्नत का चिन्ह अब्राहम और ओदी अंश नू सारे लोगों तो अलग कर देता सी। सुन्नत का चिन्ह, सुन्नत का निशान उन्होंने सारे संसार तो अलग कर देता सी। ऐसा साडी मन की सुन्नत, आमीन, हालेलुया। ऐसा साडा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, सानू पवित्र आत्मा का मिलना, परमेश्वर का अपनी कलीसिया नू पवित्र आत्मा देना, ये ओदी कलीसिया नू अलग बनाउंदा है। ये बपतिस्मा पवित्र आत्मा दा ओदी कलीसिया नू अलग बनाउंदा सारे संसार तो। हालेलुया। सारे संसार तो, सारिया संस्थावां तो अलग बनाउंदा है। आमीन। They are in all kind of denomination, but yet they are separated people. नबी कहदो सब संस्थावां वाले लोकां विच ही वसदे हन, पर फिर भी अलग किस्म के लोग हैं। जिवें अब्राहम उसे धरती ते वसदा सी जिथे और भी बहुत सारिया कौमां सन, पर फिर भी अब्राहम अलग किस्म का मनुख सी। ओदे जिस्म दे उत्ते एक अलग चिन्ह सी। आमीन, हालेलुया। ओदे जिस्म दे उत्ते एक अलग चिन्ह सी। प्रभु दे नाम दी वडियाई। उथे हित्ती सन, उथे अमोरी सन, उथे फिजी सन, उथे कई कौमां सन जिथे अब्राहम आके रह गया, आके बस जिथे अब्राहम आ गया उस कनान देश में बहुत सारिया कौमां सन, ओदे आले दुआले बहुत सारे लोग सन, बहुत सारी अलग अलग कौमां सन,
पर ओना कौमां दे विच अब्राहम अलग किस्म का व्यक्ति सी जिहदे कोल एक अलग चिन्ह सी और वह चिन्ह सुन्नत का चिन्ह सी। हालेलुया। ऐदां ही अलग अलग संस्थावां विच अलग अलग धर्मां दे लोकां विच भावें असीं रहिंदे पए आ पर एक पवित्र आत्मा पाया व्यक्ति अलग किस्म का है। वो अलग ही किस्म का है, वो भैन अलग ही किस्म की है, वो भाई अलग ही किस्म का है जिन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है, जिहदी मन की सुन्नत हुई है। वो घर अलग किस्म का घर है, वो परिवार अलग किस्म का परिवार है। हालेलुया हालेलुया। वो घराना अलग किस्म का है, वो परिवार अलग किस्म का है, वो भैन अलग किस्म की है, वो भाई अलग किस्म का है। भावें असीं सारी मिक्स क्राउड में रहने मिली जुली भीड़ में रहने पर फिर भी वो लोग अलग किस्म के लोग हैं। आमीन हालेलुया। प्रभु के नाम की वडियाई हो। कि तुसीं अलग किस्म के हो? प्रभु के नाम की वडियाई हो। ਉਹਦੇ नाम ਨੂੰ महिमा हो। उन्हें अब्राहम ਨੂੰ अलग एक अलग रूप दे दिता। उन्हें अब्राहम ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੋਂ अलग कर दिता। ਜਦੋਂ अब्राहम उस धरती ਤੇ पहुंच गया ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ईमैन ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨੇ अब्राहम ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ईमैन ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ अब्राहम ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। नबी कहता जिन्नी देर तक उसे क्राउड में रहा, जिन्नी देर तक उसे भीड़ में रहा, उसे देश में रहा, उन्नी देर तक उन्हें चिन्ह की कोई गल नहीं की। पर जदों उथों निकल आया, जदों उथों अलग हो गया, जदों उस जगह ते आ गया जिहड़ी जगह परमेश्वर ने उन्हें ठहराई सी, तो फिर उन्हें उन्हें चिन्ह की गल की। फिर उन्हें एक चिन्ह दिता, एक निशान उहदे जिस्म उत्ते दिता। आमीन। और उस निशान ने उन्हें संसार तो अलग कर दिता। दूजिया पहला दूजिया कौमां की तरह ही सी, जिद्दां दा दूजिया कौमां की शरीरक बनावट सी उदां दी ओहदी शरीरक बनावट सी। पर जदों उन्हें उस चिन्ह मिल गया और जदों उन्हें उस चिन्ह नूं अपने शरीर उत्ते धारण कर लिया, आमीन, और जदों उन्हें उस शरीर नूं उस वाधू खलड़ी नूं अपने उस अंग तो कट के सुट दिता, हुण ओहदी बनावट, हुण ओहदी शरीरक बनावट दूजा तो अलग हो गई। हुण ओह दूजिया कौमां तो दूजे मनुखा तो अलग हो गया क्योंकि वह अलग कर दिता गया। ओहदी रचना अलग हो गई। प्रभु के नाम की वडियाई हो। नबी कहता ऐदां ही साडे नाल जदों असीं संसार विच, जिन्नी देर तक असीं संसार विच, हाँ वो शरीर की सुन्नत सी, साडी मन की सुन्नत है। जिन्नी देर तक असीं साडा मन संसारी कम्मां विच, साडा मन हजे भी संसार के रंग रूपां विच, हजे भी। अब पिछले दिनों मैं हुण गल करांगा, जरूर नोट करियो। असीं एक मैसेज प्रचार किया, फेस पेंटेड इजेबल, और आप उच देखा ये रंग रोग लोड़ा, ये मूर्ति पूजका का चिन्ह है। ईमैन किन्ना दा चिन्ह है? ये मूर्ति पूजका का चिन्ह है। ये रंग रूप लोड़ा, ये नेल पालिश लोड़ियां, चाहे पैरों के नोवां ते है, हत्थां दे नोवां ते है, चाहे लिपस्टिक है, चाहे वो आईलैंड है, कुछ भी क्यों नहीं, ये मूर्ति पूजका का चिन्ह है। पर जदों साडा मन सुन्नत हो जाती, जदों साडे मन की सुन्नत हो जाती, तो ये मूर्ति पूजका तो असी अलग हो जाते। हालेलुया। फिर असी इदां दे नहीं हुंदे कि साडे दिल च ख्वाहिश आ, पर इस चर्च में दब्बे दब्बे नहीं करती।
साढ़े दिल च ख्वाहिश है कि मैं आ करा, पर हुण मैं करा ते करा की। मैं बपतिस्मा ले लिया, मैं प्रभु भोज ले लिया, मैं एंड टाइम मैसेज ज्वाइन कर लिया, हुण मैं करा ते करा की। मन च ख्वाहिश तो हैगी है, और किते ना किते ख्वाहिश प्रगट भी हो जाती, किते ना किते प्रगट भी हो जाती। मन की सुन्नत नहीं है। मन की सुन्नत है जदों ये गल्लां साडे दिलां विचारां चों निकल गईयां, जदों ये गल्लां साडे दिलां विचारां चों निकल गईयां, ये मन की सुन्नत है। और नबी कहता इट सैपरेट अस, और ये सानू अलग करता है। ये नहीं है सेवक नहीं है चलो कर लो, चलो इत्थे किहड़ा पास्टर देखदा, चलो भाईओ इत्थे आपां कुछ कर लईए। इहदा मतलब यह अजे मन की सुन्नत नहीं हुई। आमीन, हालेलुया, प्रभु के नाम की वडियाई। नबी कहता इट्स साइन, ये चिन्ह है, इट्स मार्क, ये निशान लाना है। होली स्पिरिट इज ए साइन, पवित्र आत्मा एक निशान है जो साडे ते लगदा है। एनी चाइल्ड दैट रिफ्यूज सर्कमसीजन इन ओल्ड टेस्टामेंट, पुराने नियम विच अगर कोई बच्चा सुन्नत कराउण तो इनकार कर देवे, which was the foreshadow of Holy Ghost, जो पवित्र आत्मा का परछावा है, was cut off from amongst the people, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। He could not have fellowship with the rest of the congregation, ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। If he refused to be circumcised, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੁन्नत ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। Now pattern that's today, और नबी कहता आज भी यही नमूना है। A person, एक व्यक्ति that would refuse to receive the baptism of Holy Ghost, जेड़ा पवित्र आत्मा दे बपतिस्मा पाउण तो इनकार कर देवे, can have no fellowship among those that have Holy Ghost। नबी कहता फिर ओदी पवित्र आत्मा दे नाल और पवित्र आत्मा पाए हुए लोकां दे नाल और पवित्र परमेश्वर दे नाल कोई सहभागिता नहीं है। आमीन, ओदी फिर कोई फेलोशिप नहीं है, ओदी फिर कोई संगति नहीं है, क्योंकि उन्हें उस सुन्नत का इनकार कर दिता जिदा परमेश्वर ने वायदा किया। अगर अब्राहम ओदा इनकार कर देता या अब्राहम कर लेंदा और ओदी अगली संतान इनकार कर देती, तो फिर वो ओदे लोकां विचों छेक दिता जाता। आमीन, नबी कहता इदा ही नवे नेम विच जदों नवे नेम विच तो नवे नेम विच अगर कोई पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का इनकार करता है या कहता मैं पवित्र आत्मा नहीं पाना, मैं अपनी मर्जी ना जीना है, मैनू इदां दा प्रचार नहीं चाहिए, मैनू इदां दी सुन्नत नहीं चाहिए, जे कोई इनू रिफ्यूज करता है, एदा इनकार करता है, तो भाई ब्राह्मण कहता फिर ओदी पवित्र आत्मा दे नाल, पवित्र आत्मा पाए हुए लोकां दे नाल ते पवित्र परमेश्वर दे नाल कोई भी सहभागिता नहीं है। आमीन, क्योंकि यीशु मसीह ने निकुदेमुस नूं भी कहा, उन्हें कहा जिन्नी देर तक कोई जल और आत्मा तो ना जम्मे, आमीन, वो स्वर्ग दे राज नूं नहीं देख सकता। आत्मा तो जन्म लेना, पुत्र आत्मा नूं पाउणा, ये सुन्नत है, मन की सुन्नत। अगर कोई एदा इनकार करता है, वो परमेश्वर दा ही इनकार करता है, वो स्वर्ग दे राज दा ही इनकार करता है, वो पवित्र परमेश्वर दा। आमीन, हालेलुया, वो परमेश्वर दी नाल उस सदीपक संगति तो, सदीपक जीवन तो, वो सब चीजों तो इनकार करता है। आमीन, हालेलुया, फिर ओदी कोई संगति नहीं है।
प्रभु के नाम की वडियाई। जो एक बंदा रिफ्यूज कर दिता कि मैनू ये चीज़ नहीं चाहिए, जिदा एक बारी भाई ब्राह्मण प्रचार कर रहे सन, भाई ब्राह्मण जो प्रचार कर रहे एक औरत में उठ के खड़ी हो गई और उन्हें खड़ी हो गई और कहती भाई ब्राह्मण जिहड़ा प्रचार तू करदा है ये तो मैं आदि गां भी ना सिखावा, कहती मैं आदि गां भी सीखण ना देवां, जिहड़ियां गल्लां तू करदा भी आ ना करो तो आ ना करो, तो पैंटा ना पाओ तो आ ना करो, मैं आदि गां भी ये प्रचार ना सीखण देवां। उठ के बाहर चले गए। और नबी कहंदा इन्नी खूबसूरत औरत सी जिहड़ी मैं कदी अपनी जिंदगी देखी सी। और जो असी प्रचार खत्म करके ये बंदगी खत्म हुई तो उसके हसबैंड का फोन आया, उसके हसबैंड का फोन आया और वो कहता वो जी लेडीज है मेरी पत्नी वो हॉस्पिटल में है, मेहरबानी करके चलो और उसके लिए दुआ करो। और भाई ब्राह्मण कहते जो असी थोड़े समय बाद फ्री हुए असी हॉस्पिटल पहुंचे तो वो औरत साढ़े जाने मर चुकी सी। और नबी कहता इन्नी खूबसूरत औरत सी जी मैं कभी वेखी, और जो मैं वो डेड बॉडी देखी तो बड़ी बदसूरत हुई पई सी। पता नहीं किन्ने तनाव दे नाल किन्ना को डिप्रैशन दे विचों मरी कुछ ही समय विच। और जो इन्ना तनाव दे उत्ते सी, इन्नियां पीड़ा दे उत्ते सारा चेहरा झुरड़ियां ना भर गया, सारा चेहरा जिदा कि बड़ा जोर लगता, सारा चेहरा उसका झुरड़ियां ना भर गया। और नबी कहता बड़ी अकरूप जी होके मरी, क्यों? क्योंकि उन्हें पुत्र आत्मा की सहभागिता तो इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें कहा मैनू ये नहीं चाहिए। वो सब लोग खड़े हो गई, और सब लोग खड़े हो कह लगी मैनू ये गल्लां नहीं चाहिए, पर एक गल्लां नहीं सन। आमीन। ये पुत्र आत्मा सी। हालेलुया। नबी कहता जदों एक बंदा, जदों एक व्यक्ति है पर्सन, वो पर्सन औरत भी हो सकती है, वो पर्सन आदमी भी हो सकता है। अगर जदों कोई इनकार कर दे कि मैं इस पुत्र आत्मा नूं नहीं पाउणा, मैनू मन की सूरत नहीं चाहिए, हैव नो फेलोशिप, फिर उसकी कोई संगति नहीं है। Have no fellowship that has Holy Ghost, उन्हां दे नाल उहदी कोई संगति नहीं है जिन्हां ने पवित्र आत्मा पाया है। हालेलुया। उन्हां दे नाल कोई संगति नहीं। नबी कहता माई मदर यूज्ड टू से, मेरी मां कहती थी सी, बर्ड्स ऑफ द फीदर फ्लॉक, बर्ड ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, इको जे परां वालियां चिड़ियां कट्ठियां उड़दियां हैं। यू डोंट सी डव एंड क्रो फेलोशिपिंग। नबी कहता तुसीं कदे भी घुग्गी ते कां नूं कट्ठे बैठे नहीं देखोगे। देयर डाइट्स आर डिफरेंट, उन्हां दा भोजन अलग है। देयर हैबिट्स आर डिफरेंट, उन्हां दी आदतां अलग हैं। देयर डिजायर आर डिफरेंट, उन्हां दी इच्छावां अलग अलग हैं। जब एक बंदा पुत्र आत्मा पा लेंदा है वो डाविया, वो कुकी आ। हालेलुया। और जब एक मनुष्य पुत्र आत्मा नूं रज देता है तो वो कहाँ है? आमीन। वो कहाँ है? तो फिर इन्हां दी फैलोशिप नहीं हो सकती, इन्हां दी संगति नहीं हो सकती। ये दोनों अलग अलग हैं। और जो दोवें इको परा वाले हैं तो फिर ही इकट्ठे उड़ सकते हैं। प्रभु तुहानू किरपा दी भी गल्लां समझ लो। That's why it is with the world and with Christian when you have been circumcised by the Holy Spirit, means to cut off the flesh. नबी कहते यही सिस्टम है संसार नाल और पवित्र आत्मा पाए हुए मसीह लोकां दे नाल। संसार एक कां दी तरह है, ओदियां इच्छावां अलग हैं, ओदियां आदतां अलग हैं, ओदियां सोचां अलग हैं। संसार दियां ओदियां इच्छावां अलग हैं,
ओदियां सोचा अलग हन और पुत्र आत्मा पाए हुए चर्च दिया, पुत्र आत्मा पाई हुई कलीसिया दिया ओदियां सोचा अलग हन। हालेलुया। ओदियां इच्छावां अलग हन, ओदियां हालतां अलग हन। आमीन। तुसी अलग ही, तुसी अलग दिखाई देने हो शादी विच। जो लोग तुहानू देखदे तुसी जो अलग दिखाई देने हो। क्यों अलग दिखाई देने? क्योंकि तुहाडा नेचर अलग है, तुहाडी सोच अलग है, तुहाडी आदत अलग है। और ये अलग कौन है? ये अलग पवित्र आत्मा है जो तुहाडे अंदर है। पवित्र आत्मा संसार नाल मिक्स नहीं हो सकता, वो संसार दी आदतां नाल मिक्स नहीं हो सकता। आमीन। हालेलुया। तुसीं कहोगे तो मेरी आदत है, फिर तारी आदत संसार वाली नहीं हो सकती। नबी कहता डिफरेंट हैबिट्स, अलग आदत। सरकमसीजन पहला सुन्नत नूं सुनना होंदा, फिर अगले पासे पवित्र आत्मा ते आऊगा। बड़े ध्यान नाल सुनो। सरकमसीजन कुड ओनली बी इन द मेल। सुन्नत जिहड़ी सी पुराने नेम विच केवल नर दी हुंदी सी। बट इफ वोमैन वॉज मैरिड टू ए मैन, पर जदों एक औरत एक मनुख नाल ब्याही जाती, शी वॉज पार्ट ऑफ हिम, तो ओदी हिस्सा बन जाती सी। शी वॉज सर्कमसाइज्ड विद हिम, और इस तरह उस औरत की सुन्नत भी उहदे नाल ही हुंदी सी। यू रिमेंबर कि तुहानू याद है इन तिमोथी दी पत्री च लिखिया है, वेयर इट इज सैड, जिथे लिखिया है नॉट विद स्टैंडिंग सी शैल बी सेव्ड इन चाइल्ड बेरिंग, पर तां भी बाल जणन दे वसीले नाल ओह बचाई जाएगी। इफ शी कंटिन्यू इन फेथ, जो नेचा विच लगातार बनी रहे, एंड हॉलीनेस पवित्रताई दे नाल, एंड विद ऑल सोबराइटी, अते हर तरह की अधीनगी दे नाल। हालेलुया। नबी कहता पुराने नेम जिहड़ी सुन्नत सी वो सिर्फ मनुख दी सी, औरत की सुन्नत किदां सी? जदों एक औरत मनुख नाल शादी कर लैंदी सी तां ओहदा हिस्सा सी, क्योंकि दोने शरीर दो सन पर आत्मा एक ही सी। हालेलुया। ते जदों ओहदा हिस्सा बन जाती तां नाल दे नाल उस औरत की सुन्नत गिनी जाती। आमीन। हालेलुया। पर औरत के लिए एक पुत्रताई की गल रखी जाती। प्रभु के नाम की बड़ाई है कि अपने पति के प्रति पुत्रताई विच रहे। आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम की बड़ाई हो। और जदों फिर मनुख बचाया जाता सीगा तां औरत भी बचाई जाती सी। जदों वो चिन्ह मनुख ते सी तां वो चिन्ह औरत ते भी समझा जाता सी। क्यों? क्योंकि वो औरत उस मनुख नाल जुड़ी हुई सी। जदों औरत उस मनुख नाल जुड़ी हुई तां जिहड़ा चिन्ह मनुख दे उपर सी ओही चिन्ह औरत दे उत्ते परमेश्वर देखदा सी। आमीन। हालेलुया। हुण नबी कहंदा यू नो, तुसी जानते हो, सारा लाफ्ड इन द टेंट बिहाइंड हर, सारा पिछे तंबू विच हसी। एंड द एंजल सेड, दूत ने क्या? अब्राहम, वेयर इज थाई वाइफ सारा, तेरी पत्नी सारा कितनी है? हाउ डिड ही नो दैट ही हैड ए वाइफ, वो किद्दां जान गया कि उसकी एक पत्नी भी है? जीसस सेड, यीशु ने आख्या, इट वाज इन द डे ऑफ लॉर्ड, सो विल बी इन द कमिंग ऑफ द सन ऑफ मैन। यीशु मसीह ने कहा जिद्दां लूत के दिनां विच होया, इसे तरह मनुख के पुत्र के आउण दे दिनां विच होवेगा। इस तो पहला आ पैरा पढ़ते हैं, when Sarah laughed, जदों सारा हसी, at the very message of the angel, जदों दूत संदेश दे रहा सी,
God would have killed her on the spot. ਤਾਂ ਦੂਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। But he could not bother Sarah without bothering Abraham. ਪਰ ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਬਿਨਾ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। Because they were one. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। She was part of him. ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। You are not together twain but one. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬਲਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾਦ ਦੀ ਸੁਨਤ ਸੀ, ਪਰ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਨਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਵੀ ਸੁਨਤ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ, ਔਰਤ ਪੁੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਔਰ ਬਾਲ ਜੜਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬਾਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਤੀ ਲਈ ਪੁੱਤਰਤਾਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜੋ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤਮੋਥੀ ਦੀ ਪਤਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਤੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ ਉਹੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਵਾਅਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਉਹੀ ਵਾਅਦਾ, ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਜਲਾਲ में ਸਰਕਮਸੀਜ਼ਨ ਜੋ ਸੁਨਨਤ ਸੀ, ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਟੂਡੇ ਸਰਕਮਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹਾਰਟ। ਸੁਨਨਤ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿਲ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਏ ਸਾਈਨ, ਏ ਗਿਵਨ ਸਾਈਨ, ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ when Holy Spirit come on you. ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। Until mind of this world don't like you. ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। You are against and they are against you. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। They don't want nothing to do with you at all. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। You are born of another world. ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ। ਭਾਈ ਬਹਿਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਭੈਣ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਜਲ ਬੇੜੀ ਬੈਠੀ ਕਿੱਡੀ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਵੇਖ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਸਾਤੇ ਤੇ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖ ਕੀ ਜੀਨ ਆਈਆਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖ ਕੀ ਸੂਟ ਪਾਏ, ਆਹ ਵੇਖ 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਇਕਲ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਲਾ ਲਵੇ ਬੜਾ।
ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਸੁਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਡੂ ਨੋਟ ਲਾਈਕ ਯੂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਆਓ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। they are against you, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। they don't want nothing to do with you at all, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। you are born of another world, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। because you are born of another world, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। you are just as much as alien, 10 times more alien you would be। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 10 ਗੁਣਾ ਏਲੀਅਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ? ਏਲੀਅਨ, ਓਪਰੇ, ਓਪਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਏਲੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਓਪਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਦੇ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੋ ਏਲੀਅਨ ਭਰ ਕੇ, ਖੈਰ ਏਲੀਅਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਉੱਪਰ ਏਲੀਅਨ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਏਲੀਅਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਲੀਅਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਏਲੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੀਵ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਯਾਮ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਮਸ ਵੈਬ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲਣਾ ਆ। 15 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਪੇਸ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਸਪੇਸ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਕਈ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਏਲੀਅਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਏਲੀਅਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਇੰਸ ਉੱਪਰ ਏਲੀਅਨ ਲੱਭ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਏਲੀਅਨ ਥੱਲੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਯੂ ਆਰ 10 ਟਾਈਮ ਏਲੀਅਨ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 10 ਗੁਣਾ ਏਲੀਅਨ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਇਆ ਦਿਲ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁन्नत ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਾਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸੁन्नत ਪਾਈ ਆ। ਆਮੇਨ। ਦ ਸੀਡ, ਸੁन्नत ਕੀ ਆ? ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਡ ਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਬੀਜ ਆ। ਸੀਡ ਆਫ ਅਬਰਾਹਮ, ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਬੀਜ। ਦ ਫੇਥ ਆਫ ਅਬਰਾਹਮ, ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। Who take God at his word, ਜਿਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਲਿਆ, regardless of how ridiculous it seems, ਭਾਵੇਂ ਦੇਖਣ ਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਸੋਹੀਣ ਬਣਿਆ, how unusual you act, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ
अलग जिहा विवाह तुहानूं करना पवे, हाउ peculiar it make you, भावें तुहानूं किन्ना भी अलग कर देवे, you take God at his word regardless of anything, तो फिर तुसीं परमेश्वर नूं उहदे वचन उत्ते लैंदे हो बिना किसी गल दी परवाह कीते। उन्हें अब्राहम नूं सुन्नत दित्ती, उन्हें अब्राहम दी संतान नूं भी सुन्नत करन लई कहा, ते यीशु मसीह दे लेखा करन करके असीं अब्राहम दी संतान हां। पर वो सुन्नत शरीर दी सुन्नत सी, ये सुन्नत दिल दी सुन्नत है। आमीन। और दिल दी सुन्नत की है? नबी कहता सर्कमसिजन ऑफ हार्ट, ये दिल दी सुन्नत की है? नबी कहता ये सीड ऑफ अब्राहम है, ये अब्राहम दा बीज है जो साडे अंदर है। हालेलुया। ये नहीं असीं दिल दी कोई कटाई करदे हां, ये बीज है जो साडे दिल दे विच पहला रखिया गया है। आमीन। हालेलुया। ये बीज पहले रखिया गया है। जिदा भाई इब्राहिम कहते मैं शिकार खेलन गया, मैं उत्थे एक लिली दे फुੱਲ नूं खिड़े होए देखिया। लिली का फुੱਲ खिड़िया होया सी बड़े सोहरे रंग विच, और भाई इब्राहिम कहते मैं उहदे कोल बैठ गया। मैं उहनूं पुछया इस जगह ते इस वखरी जगह ते तू किद्दां आ गया, तू किद्दां इत्थे इन्ने सोहरे रंग च खिड़ गया, किन्ने तेनू इत्थे बीजिया, और कौन तेनू इत्थे तां लैके आया? तो नबी कहंदा उस लिली दे फुੱਲ ने मेरे नाल गल कीती। उन्हें कहा जो बहुत ठंड पई हुई सी, मैं कई सालों तो इत्थे थल्ले सी, और इहदे उत्ते बर्फ पई रहिंदी सी, बर्फ पई रहिंदी सी, पर मैं थल्ले सी। पर कहता एक दिन एक शिकारी आया, फुੱਲ कह रहा, जिहदा नाम विलियम ब्रानम सी। उन्हें उथों बर्फ नूं पासे कीता, उन्होंने रात पै गई सी, और उन्हें उत्थे लकड़ा रख के अग बाल दी। जो अग बाली तो वह गरमैश मेरे तक थले गई, वो अपनी अग सेक के उथों गांह चला गया, पर वो गरमैश मैनू मिली, और वो बर्फ मेरे उत्ते फेर नहीं सी, तो मैं उस गरमैश नाल धरती विचों बाहर निकला। हालेलुया। उन्हें कहा मैं उस गरमैश नाल निकला, ये बीज सी, ये किसी बीज। नबी कहता बीज होना चाहिए, बीज। जब वचन की गरमैश पाएगी तो एक सोहना लिली का फुੱਲ खिड़ जाएगा, एक सोहना मसीह जीवन। हालेलुया। ते जे बीज थले नहीं है, फिर किसी फुੱਲ की आस नहीं की जा सकती, फिर कदे एक चंगे मसीह घराने की आस नहीं की जा सकती, फिर कभी भी चंगे मसीह जीवन की आस नहीं की जा सकती, फिर कदे भी मसीह करैक्टर मसीह सुभाव की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये बीज नहीं है, सालों साल इदा गुजर जाएगी, पर जे बीज है जो वचन की रोशनी पाऊगी तो एक सोहना लिली का फुੱਲ खिड़ेगा। आमीन। नबी कहता दिल की सुन्नत की है? पुराने नेम खलड़ी की सुन्नत सी, नवे नेम दिल की सुन्नत है। फिर कहता दिल की सुन्नत की है? सीड ऑफ अब्राहम, ये अब्राहम का बीज है। अब्राहम का बीज की है? भाई इब्राहिम कहते फेथ ऑफ अब्राहम, अब्राहम का विश्वास है। हालेलुया। जिन्हें परमेश्वर नूं उहदे वचन उत्ते लिया, परमेश्वर ने किद्दां लिया? उन्हें उहदे वचन दे उपर, भावें लोकां ने हासा बनाया, लोकां ने मजाक उड़ाया, आमीन, पर उन्हें भावें विचित्र बन गया, आमीन, पर उन्हें वचन परमेश्वर वचन दे उत्ते लिया। Abraham was 65 year old, 75 year old, 75 बरियां दा सी। Sarah at 65, सारा 65 बरियां दी सी। Took God at his word,
उन्होंने परमेश्वर ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਲਿਆ, called anything contrary to it as though it was not, और उन्होंने हर एक उल्ट गल दे जो उन्होंने देइयां दे उल्ट सी उन्होंने विश्वास किया। What do you think the people thought? तुसी की सोचते हो कि लोग की सोचेंगे? When they seen an old man 75-year-old going around praising God, he was going to have a baby, and his wife, her 65-year-old, about 75 year past menopause 25। नबी कहता कि बुढ़ा बंदा जेदी उम्र 75 साल दी है और घर की उम्र 65 साल दी है और 25 साल हो गए उन्हें जीवन वाली धारा नहीं बह रही, और परमेश्वर की वडियाई कर रहा है कि परमेश्वर सानू एक पुत्र देगा। हालेलुया। परमेश्वर सानू एक पुत्र देगा, परमेश्वर सानू एक उस पुत्र दे रहन दे लई देश भी देगा, पुत्र भी देगा, पुत्र दे रहन दे लई देश भी देगा। नबी कहता एक गल उस समय दे लोकां दे लई बड़ी हासो ही नहीं सी, पर उन्हें परमेश्वर नूं उहदे वचन उत्ते लिया। हालेलुया। उन्हें वचन ते लिया, उन्हें संसार की परवाह नहीं की। आमीन। हालेलुया। उन्हें संसार की परवाह नहीं की। And when you are circumcised of the Holy Ghost, अते जदों तुसी पुत्र आत्मा नाल सुन्नत हो जाते हो, it does the same thing to you, तो फिर तुहाडे नाल भी यही कुछ होता है। हालेलुया। फिर तुसी परवाह नहीं करते लोग तुहाडे किन्ना हसदे हन, फिर तुसी परवाह नहीं करते लोग तुहाडे बारे कहते हैं, फिर तुसी जो वो कहते हैं तुसी उन्हें कह देते हो, बस तुसी परमेश्वर के वचन दे नाल खड़े रहंदे हो। हालेलुया। तुसी परमेश्वर के वचन दे नाल खड़े रहंदे। It make you do things that you did not think you would do, फिर तुहानू उदां दे काम करने पैंदे आ जिहड़े तुसीं कदी सोचे भी नहीं सी कि तुसीं करोगे। It make you take God's promise and believe God, अते नबी कहंदा यही चीज़ां दा करना ही तुहानू परमेश्वर दे वादियां दा अधिकारी बनाउंदा है और परमेश्वर ते नेचावान बनाउंदा है। हालेलुया। हालेलुया। पुत्र आत्मा सुन्नत एक चैन है, जिदा सुन्नत अब्राहम उपर चैन सी, एदा नवे नेम विच सुन्नत है जो दिल दी है। नवे नेम विच पुत्र आत्मा चैन है, उस चैन ने अब्राहम नूं अलग कर दिता संसार तो। वाकई एंड टाइम मैसेज दियां भैणां हन, एंड टाइम मैसेज दे भाई हन, और उन्हें देखो तो पता लग जाता सचमुच इन्हां कोल एक सच्चा नबी है, इन्हां कोल एक सच्ची आवाज है, इन्हां कोल सच्चे वादे हैं। हालेलुया। उस चिन्ह ने अब्राहम को अलग कर दिता, और नवे नेम विच चिन्ह जो पुत्र आत्मा जो दिल की सुन्नत है, जो अब्राहम का बीज है, जो अब्राहम का विश्वास है, ये अज दे विश्वासी नूं अलग कर देता, संसार तो अलग कर देता। हालेलुया। प्रभु के नाम की वडियाई हो। नबी कहता इट्स ऑल्सो ए सील, एक मोहर भी है। पुत्र आत्मा एक मोहर भी है। आमीन। हालेलुया। ये मोहर भी है। जो इब्रानिया जो अफसिया 4:3 पढ़ते आओ पढ़ लीजिए। अफसिया की किताब उहदा 4 अध्याय 30 आयत। अफसिया की किताब 4:30। इत्थे लिखा ते परमेश्वर दे पुत्र आत्मा नूं
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਹਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਇਹ ਸੁन्नत ਹੈ। सुन्नत एक चिन्ह है। अब्राहम को एक चिन्ह मिलिया सी, एक निशानी मिली सी। वो निशानी दा सी नाल एक मोहर भी सी। हालेलुया। एक मोहर सी कि वो छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति है। वो मोहर सी सुरक्षा वाला व्यक्ति। आमीन। प्रभु तुहानू किरपा देवे गल्लां नूं समझण दे लई, उहदे नाम दी वडियाई होवे। इदां ही नवें नेम विच पवित्र आत्मा एक चिन्ह, एक निशान है जो साडे उत्ते है, जो सानू संसार तो अलग करदा। नाल ही पवित्र आत्मा साडे लई मोहर भी है। हालेलुया। बाइबल लिखिया, ग्रीव नॉट द होली स्पिरिट ऑफ गॉड। वो परमेश्वर दे आत्मा नूं उदास ना करो, वेयर बाय यू आर सील्ड, जिहदे नाल तुसीं मोहरबंद कीते गए, अनटू द डे ऑफ रिडेम्पशन, छुटकारे दे दिन तक दे लई। आमीन। हालेलुया। प्रभु दे नाम दी बड़ाई। नबी कहता सील की है, मोहर की है। और प्रभु ने मैंने किरपा की, इन्हां दिनां विच मैं मोहरां पढ़ियां। मैं पहली मोहर नूं खत्म कर चुकिया और प्रभु दा धन्नवाद, मैं इस साल पूरा ही समर्पित किया मोहरां पढ़न दे लई। ऐतवार की सीरीज तो इलावा होर मैं एक सोचा कोई मैसेज नहीं पढ़ना, सिर्फ मोहरां पढ़नियां है। और प्रभु दा धन्नवाद। नबी कहता मोहरां की है? नबी कहता मोहर की है? मोहर सिक्योरिटी है। वो कहता कितना सिक्योरिटी है? जिद्दां ये बाइबल 7 मोहरां लगियां होईयां सी, भेद सी, 7 मोहरां दा भेद। हुण इहदा मतलब है ये बाइबल सिक्योर हो गई। उन्नी देर तक कोई इहनूं खोल नहीं सकदा जिन्नी देर तक ये उत्थे नहीं पहुंच जांदियां जिथे मोहरां खुलणियां हन। हालेलुया। 7वें दूत दी आवाज़ देंदे दिरी ये मोहरां के खुल गया हन। उदों तक ये वचन सिक्योर रहा। परमेश्वर ने इस वचन को संभाल के रखा। ये वचन परमेश्वर दी पवित्र आत्मा की निगरानी च रहा। उन्हें इहनूं सुरक्षित रखा। कितनी देर तक? जब तक ये मोहरां खोल नहीं जांदियां। तुसीं मेरे नाल हो? हुण बाइबल कहदी तुहाडे उत्ते पवित्र आत्मा की मोहर लगी। कितनी देर तक लई? तुहाडे छुटकारे दे दिन तक दे लई, देइयां दे बदल जाण तक दे लई, रैप्चर वाले दिन तक दे लई। हालेलुया। छुटकारे दे दिन तक दे लई तुहाडे ते मोहर लगी। कोई तुहाडा कोई नुकसान नहीं कर सकदा। जदों मोहर लग जाती समान उस कंपनी का हो जाता। तुहाडी चिट्ठी आ, तुहाडा पार्सल आ, जदों डाके की मोहर लग गई तो तुसीं भी नहीं लै सकदे। जो सरकार की मोहर लग गई कोई बंदा नूं लै नहीं सकता। हुण सरकार के हत्थां चला गया तो उन्नी देर तक सरकार के हत्थां सुरक्षित रहेगा जिन्नी देर तक वो लिखे पत्ते ते पहुंच नहीं जाता। जदों उस लिखे पते वाले व्यक्ति को पहुंच गया वो व्यक्ति उन्हें खोल सकता है। इदां ही पवित्र आत्मा। आमीन। पवित्र आत्मा की है? एक चिन्ह है। पवित्र आत्मा की है? एक मोहर है। मोहर परमेश्वर मोहर ला देंदा। आमीन। पहला चिन्ह लाउंदा है, चिन्ह जो सानू अलग करदा। भाई इब्राहिम कहते जो जंगलों च खुलियां मज्जां छड्डदे सी, खुलियां पहाड़ा साडे नहीं इधर हैगा या शायद होएगा भी। भाई इब्राहिम कहते खुलियां मज्जां छड्डियां होंदियां सन पहाड़ा उत्ते, आले दुआले वड्डे पहाड़ सन, आले दुआले कवर किया होंदा सी, खुलियां छड्डियां होंदियां सन मज्जां। सारी गर्मी सारी पतझड़ मज्जां चरदियां रहिंदियां। ते
जो सियाल की रुत आनी तो जिन्ने अलग अलग झुंड की सारी अपन भेडां अपन मझां अलग कर लेंदे सन। क्यों अलग करते सन? क्योंकि उन्हां उत्ते एक चिन्ह लगा हुंदा सी। और नबी कहता चिन्ह किदां लगदा सीगा? जे तुसीं चिन्ह संदेश पढ़ो तो भाई इब्राहिम दस दे कि चिन्ह किदां लगदा सी। वो कहता चिन्ह नबी कहता जो गाड़ उत्थे उन्होंने नप लैना, उन्होंने सिर तो बाहां तो नप लैना, तो भाई इब्राहिम कहते एक धुखदा होया सरिया जिहदे उत्ते कोई चिन्ह बनिया हुंदा सी, जिद्दां क्रॉस का चिन्ह, गोले का चिन्ह या कुछ। नबी कहता पूरी तरह कोलियां विचों गर्म ओहदी उत्थे पिठ ते लाया जांदा सीगा, पिछले पट के उपर ओहदे खबो दिता जाता सी। और भाई इब्राहिम कहते जो खबोया जाए तो खबो तो बाद चक्या जाए ओहदे उत्ते गर्म लुक पा दी जाती सी। और भाई इब्राहिम कहता मैं जो एक देखदा सी जां करदा सी तो यह चीज मेरे दिल नूं बड़ा तड़पाउंदी सी। और नबी कहता खासकर गावां दे लई मेरे मन च बड़ी हलीफ जी हुंदी सी। पर भाई इब्राहिम कहता अगर वो चिन्ह ना लगदा तो कोई भी इहदा वाली वारस नहीं सी। अगर चिन्ह तो बिना उहदा कोई वाली वारस नहीं सी, चिन्ह तो बिना वो किसी ने भी अधिकार नहीं सी। नबी कहता भावें चिन्ह बड़ा औखा लगदा सी पर यह चिन्ह ओनू किसी ने बना देता सी। हालेलुया। भैणो भरावो एक अलग जिंदगी जीनी बड़ी औखी है, एक अलग होना बड़ा औखा है, यह चिन्ह लेना बड़ा औखा है पर यह चिन्ह तुहानू किसी ने बना देता है। हालेलुया। यह चिन्ह लेना बड़ा औखा है, यह अलग जीना बड़ा औखा है, अलग सोचना बड़ा औखा है, संसार तो अलग होना बड़ा औखा है। पर जो तुम संसार तो अलग हो, संसार के रंग रोगना तो अलग हो, ये ख्वाहिशा तो अलग हो, तो ये अलगपन तुहानू किसी का बना देता है। हालेलुया। जो समा इकट्ठा करन दा आएगा तो वह अपने चिन्ह नूं देखेगा और चिन्ह नूं देख के वह अपने चिन्ह के अनुसार उस जीव नूं अपने बाड़े में जमा कर लेगा। हालेलुया। ये चिन्ह बड़ा औखा है। नबी कह दो गां तो मार ही देता सी और भाई इब्राहिम के जो चिन्ह लग जाता तो फिर वो गां लागे चक नहीं सी खड़दी, वो जानवर लागे चक नहीं सी खड़दा, ये उन्होंने तड़फा ही देता सी। चिन्ह और पवित्र आत्मा की है चिन्ह। हालेलुया। प्रभु के नाम की बड़ाई हो, उहदे नाम की महिमा। जदों तुसीं पुराने नेम में देखो, जदों अब्राहम की सुनत हुई, आओ तुसीं मेरा देखो उत्पत्ति किताब दा 17 अध्याय। तेरी आयत पढ़ देना। तो अब्राहम ने अपने पुत्र इस्माइल अते अपने सब घर जम्मिया अते अपने सब 17 की 23 आयत पढ़ रहे हैं। 17 उत्पत्ति किताब 17 अध्याय। अपने सब घर जम्मिया ते अपने सब चांदी नाल खरीदे होया अते अर्थात अब्राहम के घर के मनुखा विचों हर एक नर नूं लैके उन्हां दे बदन की खलड़ी विचों उसे दिहाड़े सुन्नत करवाई जिवें परमेश्वर ने उहदे नाल गल कीती सी। अते अब्राहम 99 वरियां दा जद ओहदे बदन की खलड़ी विच ओहदी सुन्नत की गई अते इस्माइल 13 वरियां दा सी जद ओहदे बदन की खलड़ी विच ओहदी सुन्नत की गई अते ओहदे पुत्र इस्माइल दियां सुन्नतां विचों एक ओहदे ते ओहदे पुत्र इस्माइल दियां सुन्नतां इक्को दिन होईयां अते ओहदे घर जम्मे सब मनुख भावें घर जम्मे सन भावें परदेसी तो चांदी दे के लए हुए सी ओहदे नाल सबना दी सुन्नत की गई। ये सुन्नत 99 वरियां बुजुर्ग बंदा है और सुन्नत कर ली क्या गया। जो सुन्नत हुई बड़े ध्यान ना सुनो 18 अध्याय के पढ़ो
तो लिखा फिर यहोवा दे दूत ने उन्हें ममरे दी बरूतां विच दर्शन दिता, जां ओ तंबू दे बूहे विच दिन दी धुप दे वेले बैठा होया धुप दे वेले। फिर अगे पढ़ियो, उन्हें अपनी अखां चुकियां, चुक के निगाह मारी, वेखो तीन मनुख उहदे सामने खलोते सन अते वेखदियां ओह उहनूं मिलण लई तंबू दे बूहे नस्सिया अते धरती तीक चुकिया। उसने आख्या, हे प्रभु जी, जे तेरी कृपा की निगाह मेरे उत्ते हुई तो अपने दास दे कोलों चलिया ना जा, थोड़ा जिहा पानी लिया जाए, तुसीं अपने चरण धो के रुख हेठ आराम करो। मौसम किदां दा है? रुख हेठ आराम करन दा है। पर अब्राहम आप धुप्पे बैठा है दिन दे वेले, लिखा जा धुप दे वेले, दिन दी धुप दे वेले बैठा होया बूहे विच। क्यों? क्योंकि उसकी सुन्नत ने उन्हें बहुत कमजोर कर दिता, उसका बहुत सारा लहू उसदे विचों निकल गया, उन्होंने बहुत कमजोर कर दिता, उसका शरीर बहुत टुट गया और डाढे बुखार नाल पखिया होया। जो एक बंदे बुखार चढ़िया होंदा धुप भी चंगी लगती, उन्होंने गर्मियों में छावें भी ठंड लगती, वो पूरी तरह कमजोर सी, पूरी तरीके नाल शरीर टुटिया होया सी, पूरी तरीके नाल बुखार चढ़िया सी और वो दिन दे वेले धुप्पे बैठा सी। क्यों? क्योंकि सुन्नत करवा गया गया सी, कुछ देर ही होए सी। उन्हें और इस्माइल ने, उन्हें और उसके पुत्र इस्माइल ने, उसके घर जम्मे सबना ने सुन्नत की सी और अब्राहम ने 99 बरस की उम्र सुन्नत की सी और पूरा कमजोर सी, टुटिया होया शरीर, बुखार विच लथ पस और दिन की धुप दे वेले वो बूहे दे बाहर बैठा सी। क्योंकि ये चिन्ह तुहानूं कमजोर करदा है, ये चिन्ह तुहानूं तोड़दा है। तुसीं मेरे नाल हो? हालेलुया। ये चिन्ह लवाउणा बड़ा औखा है, ये चिन्ह बीमार करदा है। देखो उन्हें अब्राहम को बीमार कर दिता, अब्राहम कमजोर पै गया, बहुत सारा लहू निकल गया, पर जदों वो बीमार, जदों तंग सी तां उसे ही समय उन्हें तीन मनुखां अपनी बाहों दे वेखिया। हालेलुया। उसे समय उन्हें उन्होंने अपने कोलों दे देखिया, उन्हें परमेश्वर यहोवा परमेश्वर को अपने कोलों दे देखिया और उन्हें यहोवा परमेश्वर को अपने कच्च देखिया। आमीन। उन्होंने रुख थले बिठाया, उन्होंने खान दे लई पीन दे लई भोजन दिता। आमीन। ये चिन्ह बड़ा औखा लवाउणा। नबी कहंदा गावां दी नहीं, मेरी बात बहुत ही तरस सी, पर जदों चिन्ह लग जाता सी वो बीमार पै जांदियां सी और ढिलियां हो जांदियां, जिदा बुखार चढ़िया होंदा, कमजोर हो जांदियां, क्योंकि दाग्या होया लोहा उन्हां ते लगदा सी और उस चिन्ह ते लुक पाई जाती सी, ताकि वो चिन्ह सारी जिंदगी जब तक वो कटी नहीं जाती, चिन्ह वो तो जाता नहीं सी वो बदन दे तो। आमीन। हालेलुया। ए पुत्रा दा चिन्ह, ये चिन्ह लवाउणा बड़ा औखा है। चिन्ह की है? नबी कहंदा अलग जीवन, अलग जीवन जीना बड़ा औखा है। सारे दे बाल साइडा तो कट्टे हैं, उत्तों बधे हैं, हुण तुहाडा भी दिल करूगा। आमीन। अलग दिखना बड़ा औखा है, सिंपल कपड़े पाने बड़े औखे है। आमीन। हालेलुया। सिंपल दिखाई देना बड़ा औखा है, पर भैणो भरावो ये अलग दा ही सानू एक चिन्ह दे थल्ले ले आउंदी है, वो चिन्ह जो दिल दी सुन्नत है। हालेलुया। जो दिल दी सुन्नत है सानू ओदे विच ले आउंदी, और ये दिल दी सुन्नत अब्राहम दा बीज है, ये अब्राहम दा विश्वास है। हालेलुया। ये चिन्ह, ये अलग जीवन सानू दिखाउंदा है कि असीं किसे दे हो गए। हालेलुया। प्रभु दे नाम दी बड़ाई हो, उहदे नाम नूं महिमा मिले, उहदे नाम नूं इज्जत ते जलाल मिले। साडा वखरापन, साडी वखरी सोच, साड़ियां वखरियां आदतां
आमेन। ये दिखाउंदियां हन कि साडे उत्ते चिन्ह लग चुकिया है। आमेन, हालेलुया। ये मोहर आ। कदों तक दे लई मोहर आ? 1 साल दे लई। 1 साल तो बाद मैं नेल पेंट ला सकदी बपतिस्मे दे। 1 साल तो बाद भाई आ कर सकदा, भैन आ कर सकदी। 1 साल तो बाद, 2 साल तो बाद नहीं। जे पुत्र आत्मा मिलिया है तो यह छुटकारे दे दिन तक नहीं मिलिया है। हालेलुया, प्रभु दे नाम की वडियाई। फिर ये नहीं भी सेवक ना वेख लवे, मुठिया बंद करके कोट की जेब च पा लिया भी लगी नेल पॉलिश। सेवक ना पैर देख लवे होण। ये चिन्ह जो पुत्र आत्मा की मोहर है। आमेन, हालेलुया। ये छुटकारे दे दिन तक दे लई जिन्हां ने पुत्र आत्मा की मोहर पा लई और छुटकारे दे दिन तक ली मोहर बंद हैं। किसी महीने नहीं, साल नहीं। ये नहीं 2-4 साल तौबा वाले मुंह करनगे ते बाद 50 साल बाद फिर हो जी हो जाएंगे। इदा नहीं है। वो आखिरी दम तक दे। हालेलुया। और जेड़े आखिरी दम तक वफादार रहेंगे, यीशु मसीह ने कहा जेड़े मौत ताई वफादार रहेंगे उन्होंने मैं अपने पिता दे नाल सिंहासन ते बिठावांगा जिद्दां मैं जित्तिया। आमेन, हालेलुया। पुत्र आत्मा की है? चिन्ह है। चिन्ह की है? अलग जीवन। हालेलुया। जिवें कहते जिवें कहते भी संधूर पाउणा बड़ा जरूरी है, चिन्ह है। हाँ, ये संसार की चिन्ह है। जिद्दां कहते एक ब्याही कुड़ी का मेकअप करना बड़ा जरूरी है, ये चिन्ह है कि ब्याही है। हाँ, ये संसार का चिन्ह है क्योंकि संसार के भी चिन्ह है। आमेन, हालेलुया। संसार के लोगों के भी चिन्ह है पर क्योंकि जे आप गल की जिद्दां भाई ब्राह्मण कहते घुग्गी आ, एक कां आ ते कां की भी कोई पछाण हैगी है ना, जिन्हों आप देख के कहने कां है। ਇਹਦਾ ਘੁੱਗੀ ਦੀ भी कोई पछाण हैगी आ, जिन्हों असीं देख के कहने घुग्गी है डब है। ਉਹਦਾ भी कोई चिन्ह है जिथों असीं पछाण लैंदे। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਭਈ ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਵੀ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਖੱਬ ਵੀ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਡੱਬ ਆ, ਡੱਬ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਏਡਾ ਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਆਮੇਨ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਉੜਦੇ ਹੀ ਆ। ਚੇਨ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਚੇਨ ਆ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੋਰ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਮੋਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਆ? ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ। कोई 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं। जिन्हें पुत्र आत्मा पाया या जिन्हों पुत्र आत्मा ने मोर बंद करता छुटकारे दे दिन तक नहीं मोर बंद है। हालेलुया, प्रभु दे नाम की वडियाई हो। आमेन, Amen. Hallelujah. You are his product. हो तुसी ओदा प्रोडक्ट बन गए, तुसी ओदा समान बन गए। Until the day of your redemption, छुटकारे दे दिन तक दे। हुण तुसी अपने नहीं रह गए, हुण तुसी ओदे हो गए क्योंकि उन्हें दावत
उन्हें अपना चिन्ह तुहाडे उत्ते ला दिता, उन्हें अपनी मोहर तुहाडे उत्ते ला दी। जदों मोहर ला दी तो यह मतलब है हुण प्रोडक्ट जिहड़ा आ ओहदा है। हुण उस प्रोडक्ट की सारी जिम्मेवारी हुण उस कंपनी की है। आमीन। ए सील इज ए फिनिश्ड थिंग। नबी कहंदा एक मोहर एक संपूर्ण हो चुका काम है, एक पूरा हो चुका काम है। परमेश्वर देखदा जो मेरी मर्जी सी, जो मेरी सिद्ध इच्छा सी इस युग दे लई, इस भैन विच, इस भाई च पूरी हो गई, फिर वो उन्होंने पवित्र आत्मा की मोहर दिंदा है। आमीन, हालेलुया, प्रभु के नाम की वडियाई। यू नोटिस कि तुसीं ध्यान दिता, हॉली गोस्ट इज ए साइन, पवित्र आत्मा एक चिन्ह है। हॉली गोस्ट इज ए सील, ये एक मोहर है। मैं तो आज नंबर पैरा पढ़ रहा। इट इज ए साइन, ये चिन्ह है, दैट गॉड गेव टू हिज चोजन चिल्ड्रन। ये वो चिन्ह है जो परमेश्वर ने अपने चुने हुए बच्चों दिता है। टू रिजेक्ट इट, इनू रदना, इज टू कट फ्रॉम द पीपल, लोगों तो अलग होना है। आमीन, हालेलुया। फिर अगे नबी उदाहरण दे के समझाउंदी, आई यूज टू वर्क ऑन ए रेल रोड आउट हियर इन हैरी वाटरबैरी कंपनी। नबी कहते हैरी वाटरबैरी कंपनी एक कंपनी सी, रेल रोड कंपनी, जी रेल के उपर समान इधर उधर लैके जाती सी। मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ काम करया करता सी। माई ब्रदर डॉक एंड वी वुड गो डाउन टू लोड ए कार। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਡੌਗ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੈਕ देयर ਹੈਲਪ ਲੋਡਸ ਕਾਰ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਡੌਗ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਵੈਨ ਦ ਕਾਰ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਲੋਡਡ, ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਲੱਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਦੇ ਗੋ ਥਰੂ ਡੈਟ ਕਾਰ ਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। तो फिर उस कार ਨੂੰ चेक करने के लिए इंस्पैक्टर आया। इफ यू फाइंड एनीथिंग लूज, जो कार लोड कर दी गई, उन्हें बांध दिता गया, तो फिर भाई इब्राहिम कहते इंस्पैक्टर चेक करना आया। इफ यू फाइंड एनीथिंग लूज, अगर वो किसी चीज को ढिली देखता, किसी रस्सी को, वेयर इट वुड फॉल एंड ब्रेक और एनीथिंग दैट वुड डिस्ट्रॉय, तो वह कार डिग सकती सी, टुट सकती सी, खत्म हो सकती सी। ही विल नॉट सील दैट कार अंटिल दैट कार इज सो कंप्लीटली पैक्ड। वो उन्नी देर तक कार नू मोहर बंद नहीं सी कर सकता जिन्नी देर तक कार पूरी तरह नाल पैक नहीं सी हो जाती। वो रस्सियां रुस्सियां पूरी तरह जकड़ियां नहीं सी जांदियां। उन्हें पता है कि कार पूरी तरह सुरक्षित है। जो रेल गड्डी दौड़ेगी तो उस प्लेटफार्म से, जो प्लेटफार्म रेल गड्डी का आ, वो कार खड़ेगी, जो गड्डी दौड़ेगी तो इन्हें कोई झटका नहीं बजूगा, कोई नुकसान नहीं होएगा। जब पूरी तरह पैक्ड देखता, पूरी तरह बंद देखता, शेकिंग ऑफ द राइड वुड नॉट बॉदर द प्रोडक्ट दैट्स ऑन इनसाइड। ते उस गड्डी के झटके जिहड़े वजने सन, उन्होंने उस कार का कोई नुकसान नहीं सी करना। दैट्स व्हाट द मैटर। नबी कहता यही गल सी। दैट इंस्पैक्टर वांट टू चेक, जो वो इंस्पैक्टर चेक करना चाहता सी। व्हेन द इंस्पैक्टर गोज थ्रू, जो इंस्पैक्टर गया टू इंस्पैक्ट योर लाइफ, कि वो तुम्हारी जिंदगी को चेक करे, टू सी, देखे, इफ यू आर नॉट जस्ट ए लिटिल लूज अबाउट थिंग्स, कि तुसी चीज़ों में थोड़े जे भी ढिले तो नहीं हो। नबी कहता इदा ही पवित्र आत्मा होता है, वो सारी जिंदगी को चेक करता है, वो सारी मसीह जिंदगी, वो सारे मसीह विहार, वो सारी मसीह नेचर वो चेक करता है। क्योंकि जे कोई भी रस्सी कौड़ कोई ढिली रह गई
तो वह गड्डी जिहड़ी आ खत्म हो जाऊगी। वो रेल के उत्ते दौड़ते समय जो रेल दौड़ रही होगी तो कार उस डिग पाऊगी, लूज हो जाऊगी। भाई ब्रांड कहते तो मैं और मेरा भाई डॉक असी कारा लाते सी, इंस्पैक्टर आके चेक करता ही रस्सियां। वो कहता इदा ही पुत्र आत्मा करता, पुत्र आत्मा आंदा वो तुहाडी जिंदगी नूं इंस्पैक्ट योर लाइफ, वो तुहाडी जिंदगी नूं छानबीन करता है, वो तुहाडी नेचर की छानबीन करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लिटल लूज अबाउट योर प्रेयर लाइफ, कि तुहाडी दुआ वाली जिंदगी में कोई ढिलता नहीं है। लिटल लूज अबाउट दैट टेंपर, कि तुहाडी सुभाव वाली रस्सी में कोई ढिलता नहीं है। लिटल लूज अबाउट दैट टेंपर, लिटल लूज अबाउट द टंग्स, कि तुहाडी जुबान वाली रस्सी ढिलता नहीं है। लिटल लूज टॉक अबाउट अदर्स, दूजिया नाल गल करते समय ही विल नेवर सील द कार, वो इदा दी कार नूं कदे भी मोर बंद नहीं करेगा। सम डर्टी हैबिट्स, बुरियां आदतां, सम वाइल्ड थिंग्स, ओ गंदियां चीजां, सम वल्गैरिटी माइंड, कुछ दूषित विचार, ही कैन नॉट सील द कार, वो इस तरह की कार नूं मोर बंद नहीं कर सकता। आमीन, वो साडी जिंदगी नूं चेक करता है कि साडी प्रेयरफुल दुआ वाली रस्सी ढिली तां नहीं, साडी रोजा वाली रस्सी ढिली तां नहीं, साडी समर्पण वाली रस्सी ढिली तां नहीं, साडे सुभाव वाली रस्सी ढिली तां नहीं, साडे टेंपर, आमीन, साडी जुबान की रस्सी ढिली तां नहीं। नबी कहता अगर साडी विच कुछ बुरियां आदतां हैं, बुरे विचार हैं, तो वो इंस्पैक्टर उस कार नूं सील मोर बंद नहीं करेगा। आमीन, हालेलुया। कि तुसीं विश्वास करदे हो इंस्पैक्टर इत्थे ही आ? हालेलुया, वो इत्थे ही है।